Hello friends, how are you all? I think you are fine and you are looking at my get-up. You might be surprising which type of get-up is this. It is according to the occasion as nation is celebrating its 72nd Independence Day. I am back from my school after celebrating this and I am with the spirit of the nation where in the school today we all with my students and my fellow teachers enjoyed this with a cultural program. And after being back here in my classroom, I thought to be continue with the spirit with you also, and that is why I have decided to the lesson we will go for today. This is the lesson that we will study today, indigo. You can see this is indigo. This was the reason with the start of Mahatma Gandhi's experiment in India, first ever experiment, and the main reason was this indigo. Today we will come to know about how a dark blue dye plant जो है which is used to brighten our white clothes in real sense enlighten the people, poor peasants and Indian masses under the leadership of Mahatma Gandhi, and result was Champaran Satyagraha and also ultimately start of other satyagrahas by Gandhiji, and finally all the struggle of Indian movement came to an end by 1947. So we will see कि ये नील की खेती ही जो थी मील का पत्थर जो है साबित हुई, इसकी वजह से ही जो है एक तरह से नेशनल मूवमेंट फॉर जो फ्रीडम है वो शुरू हुआ। तो आज जो हम ये 15 अगस्त का फंक्शन धूमधाम से मना रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, एंड इन दैट function in this national festival whole nation is remembering all our leaders and our martyrs who sacrificed their life for the freedom of ours, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उनमें से जो थे फॉरमोस्ट हमारे लीडर महात्मा गांधी थे, and revolution of Gandhi in India, as in Champaran Satyagraha was his first experiment in India of his non-violence and civil disobedience, and he started it in Champaran, and we will go with the story. When we study it, you will find Gandhiji in action struggling for those sharecroppers who were forced to grow indigo crop, and they had to deposit and their entire harvest as rent to the landlords. It was an unjust, and Gandhi started when Gandhiji intervened and how it all happened, and that sharecropping जो system was disappeared. All this is discussed in this chapter, and that's why it is rightly named as indigo by the writer, because indigo is the main crop due to which Champaran Satyagraha was started against the landlord, and to give relief to those sharecroppers who were forced to deposit their entire harvest as rent to the landlord. That Champaran episode was the typical style of Gandhiji's working with non-violence and civil disobedience. It was his first experiment, and that was tested and very much succeeded in India first time, and later on he started other satyagrahas also like Kheda, Dandi Yatra, and in 1942 in Quit India movement, and finally we all with the help of Mahatma Gandhi style of working we got freedom in 1947. And if we talk about the writer of this lesson, he, as you can say, he was an Jewish American journalist who visited Sevagram ashram of Gandhiji in 1942, and Louis Fisher remained with him in heat of June with Gandhiji, and where in a day he was allowed to talk to him for 1 hour, and he wrote on Gandhi a book, The Life of Mahatma Gandhi, and from that book this lesson is an excerpt in which Champaran Satyagraha and its reasons and its outcomes
and conditions of peasants there, all are discussed with very minutely describing all the incidents. This book, The Life of Mahatma Gandhi, is considered to be the best book ever written on Mahatma Gandhi. It was observed by the Times Educational Supplement report that it is the one of the best book written on Gandhi. Louis Fisher wrote another book in 1949, The God That Failed also. That was also a bestseller for him. Louis Fisher believed that Mahatma Gandhi was the greatest individual of 20th century. Louis Fisher served as volunteer in British Army from 1918 to 1920. He wrote for New York Times also as journalist. He remained a member of the faculty of Princeton University also. In this book he has all described in details the likes and dislikes of Gandhi. And if we talk about the theme of the lesson, the leadership shown by Mahatma Gandhi for the problem being faced and the unrest they were going through, the old sharecroppers of Champaran, and Gandhiji intervened to solve the प्रॉब्लम विद कन्विंसिंग आर्गूमेंटेशन एंड नेगोशिएशंस, कि कैसे जो है बातचीत के जरिए ही उन्होंने जो है शेयर क्रॉपर्स की समस्याओं को उठाया भी और उन्हें शांत भी किया, उनकी मांगों को पूरा भी किया। तो ये जो है इसका थीम है। और ये भी कि किसानों के लिए जो है इट वाज नॉट कि दे शुड गेट कंपनसेशन 100%, बट इट वाज फ्रीडम फ्रॉम फियर and that was more important according to Gandhi. So this is shown in very details, minute details are given by the writer. लुइस फिशर द्वारा लिखी गई महात्मा गांधी की ये बायोग्राफी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसका ये जो लेसन इंडिगो है एक एग्जर्प्ट है, कैसे जो है महात्मा गांधी ने एज ए टूल यूज़ किए नॉन वायलेंस को, नॉन कोऑपरेशन को, सिविल डिसओबीडियंस को, और उन्होंने मजबूर कर दिया अंग्रेज़ों को कि वे टेबल पर गांधी जी के साथ बैठें और शेयर क्रॉपर्स की समस्याओं के हल के लिए बात करें। और फाइनली जो है गांधी जी वाज सक्सीडेड कि नॉट ओनली उन्होंने 25% कंपनसेशन जो है दिलवाया, बल्कि इसके साथ ही जो प्रेस्टीज थी लैंडलॉर्ड्स की वो जो उनसे छिन गई, जो रुतबा था वो भी छिन गया। ये जो गांधी जी ने मुख्य रूप से अपने पक्ष रखा था, उनका कहना था कि वी आर less concerned with 25% compensation, but more it is freedom from fear for the peasants, for the masses। और फिर कैसे अल्टीमेटली जब यही फ्रीडम फ्रॉम फियर इन्हें हुआ और बाद में इन्हें लगने लगा कि हमें भी जो है, तो गांधी जी ने एक तरह से उन्हें मोटिवेट किया कि वे भी फ्रीडम मूवमेंट में जो है देश की आज़ादी का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें जो है मैसेज ने जो है मोटिवेट हुए इसमें भाग लेने के लिए। तो ये आप देखेंगे थीम में। और ये तो थी लेसन के इंडिगो के थीम की बात। यदि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको इस पार्ट से ये पता लगेगा कि कैसे जो है किसानों के लिए जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है गांधी जी का मेन टारगेट था, कि ये जो फियर स्टिकन जो ये शेयर क्रॉपर्स हैं, पीजेंट्स हैं, हमारे मैसेज हैं, कैसे डर जो है इनका जो है दूर किया जाए। तो गांधी जी ने अपने जो टूल्स थे नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, इनके द्वारा अपनी लीडरशिप क्वालिटी से जो इनको प्रेरित किया और वे सब उनकी बात माने और फाइनली फ्रीडम मूवमेंट में भी जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो मेन जो था कि फ्रीडम फ्रॉम फियर। लेकिन यदि आप बच्चे देखें, आप ये देखिए कि क्या हम वास्तव में हमारा पुअर आज 71 साल की आज़ादी के बाद भी क्या वो फ्री है फियर से? ये सोचने वाली बात है आपके लिए जब आप ये लेसन पढ़ेंगे। तो पहले तो अंग्रेज़ थे जो हमारे यहाँ राज करते थे, वे बाहर के लोग थे, लेकिन आज 71 साल की आज़ादी के बाद भी डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग या लोअर कास्ट के लोग, क्या महिलाएं और वे फ्री हैं एजुकेशन के लिए या अन्य जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पर आप देख सकते हैं। तो आपने ये देखना है इस लेसन में पढ़ते हुए। दूसरी बात है कि लर्निंग आउटकम में लीडरशिप भी देखिए कि महात्मा गांधी ने कैसे कि वो कंसर्न था
वो कहते थे कि आपने ये देखना है कि बात करते थे कि आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन इवेंट्स। आज क्या होता है, आज आपने देखना है कि कैसे मॉब लिंचिंग है या कास्टिज़म है, कैसे जो है लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के लोगों द्वारा आज भी जो है उन पर एक्सप्लॉयटेशन है किया जाता है। तो इस लेसन से पता लगता है कि कैसे जो है एक नेता गांधी जी जैसा निकल कर आता है, संघर्ष करता है और आज़ादी दिलवाता है, और वो शिक्षा, स्वास्थ्य और आम रूटीन की समस्याओं से जो है परिचित है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है। तो ये बहुत अच्छा एक आपके लिए चैप्टर है। और इसके अंदर अगर लर्निंग आउटकम की बात करें तो आपके लिए हम देखें तो लीगल प्रोसीजर की जो टर्मिनोलॉजी है उससे अगर आप परिचित होना चाहते हैं तो ये लेसन का टेक्स्ट आप ज़रूर पढ़ें, जो मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इंट्रो, टाइटल, थीम, राइटर, समरी और एक्सरसाइज ले रहे हैं। चौथी बात जो है इसके अंदर आप पढ़ते हुए देखिएगा कि बड़ा अच्छा यूज़ किया है डायरेक्ट स्पीच का। सो मैनी इंस्टेंसेस यू विल सी, अगर आपने नरेशन, जो कि आपने आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो फेस करने हैं नरेशन के क्वेश्चंस, तो ये लेसन जो है एक आइडियल लेसन है अगर आप नरेशन को क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लेसन पढ़ते वक्त ही बताऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे जो है लीगल प्रोसीजर की टर्मिनोलॉजी और डायरेक्ट स्पीच का अच्छा जो है राइटर ने यहाँ पर उदाहरण आप बच्चों के लिए पेश किया है कि जो उम्मीद की जाती है कि 10+2 लेवल का स्टूडेंट शुड बी हैविंग दीज लर्निंग आउटकम्स व्हेन ही गोज़ आउट बाय पासिंग 10+2। एंड लेट्स गो टू नाउ समरी ऑफ द लेसन। अगर हम देखें तो लुइस फिशर जो है विजिट्स गांधी इन 1942 टू सेवाग्राम आश्रम एंड वेयर गांधी टेल्स हिम व्हाट हैपेंड इन 1917, जो चंपारण सत्याग्रह है उनके बारे में उनको बताते हैं कि कैसे एक बार वो इट वाज इन 1916 दैट ही वाज इन लखनऊ फॉर एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए पर्सन राजकुमार शुक्ला कम्स टू हिम एंड आस्क हिम टू फिक्स ए डेट। एंड गांधी जी जो कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी कई जगह जाना है, अभी मैं समय नहीं दे पाऊँगा। राजकुमार शुक्ला वो एक इलिटरेट और रिजोल्यूट पर्सन होता है, वो जो है अडमांट है कि मैं आपको साथ लेकर ही जाऊँगा। तो फिर गांधी जी जो है उनको एक बोलते हैं कि मैं सच एंड सच टाइम को जो है आई एम कमिंग इन कैलकाटा, यू सी मी देयर, आई विल गो विद यू वट एवर इज़ योर प्रॉब्लम। राजकुमार शुक्ला ये चाहते हैं उनसे, गांधी जी से, कि एक बार आएँ और शेयर क्रॉपर्स की जो अनजस्ट हो रहा है, लैंडलॉर्ड जो हैं उन पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि खुद राजकुमार शुक्ला वाज टोल्ड बाय समवन टू स्पीक टू गांधी अबाउट द सब्जेक्ट। सो जो है राजकुमार शुक्ला वहाँ जाता है, अभी वो गांधी जी कहने पे वापस आ जाता है। तो जब गांधी जी कलकत्ता आते हैं तो वो वहाँ जाता है और उनको वहाँ से जो रेलवे स्टेशन पर रिसीव करता है। नाउ दे बोर्डेड द ट्रेन टू पटना इन जहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो है ही टेक्स गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं प्रेसिडेंट भी बनते हैं, उनके घर लेके जाता है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट at home at that time, but his servants were there and his servants also thought Gandhi to be another peasant who is with Rajkumar Shukla। जो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं वो भी एक किसान हैं, तो वे भी उसके साथ जो हैं मिसबिहेव करते हैं। ही इवन द सर्वेंट्स इवन डू नॉट अलाउ गांधी जी टू फिल बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, कि कहीं जो है पानी ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि हाउ दे कम टू नो दैट ही इज़ एन अनटचेबल। गांधी जी डिसाइड्स टू गो टू मुजफ्फरपुर टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। सो जो हैं वो जे.बी. कृपलानी को जो है वहाँ से मैसेज भेजते हैं और जे.बी. कृपलानी जो है उन्हें लेने के लिए जो आते हैं वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर विद सो मैनी स्टूडेंट्स वर विद जे.बी. कृपलानी देयर, जो उनको रिसीव करते हैं महात्मा गांधी। और फिर जे.बी. कृपलानी जो है टेक्स गांधी टू हिज होम। जे.बी. कृपलानी का उनके घर ले जाना भी महात्मा गांधी
जो है लुईस फिशर को बताते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो घटना थी, क्योंकि इन दोज डेज जो हैं पीपल वर अफ्रेड टू कीप द पर्सन हु इज़ फाइटिंग फॉर होम रूल एट देयर होम। सो बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो हैं जेबी कृपलानी का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका करेज बोलते हैं कि उसने मुझे अपने घर में जो है स्टे कराया, टू हार्बर ए पर्सन लाइक मी। जेबी कृपलानी के यहाँ रहते हुए ही जो है जो गांधी जी के आने की खबर जो है पूरे इलाके में फैल जाती है कि हमारी समस्याओं के हल के लिए सभी शेयर क्रॉपर्स के कानों तक ये खबर पहुंच जाती है कि एक महात्मा आए हुए हैं। हालांकि वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि वे साउथ अफ्रीका से अभी अभी जो हैं आए हैं, तो लेकिन वे जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं वहाँ। इस तरह से सारे मुजफ्फरपुर में भी जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है एक शुरुआत जो है हो चुकी होती है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इस बीच में जो है एक लॉयर्स का जो ग्रुप है वो भी जो है महात्मा गांधी से मिलने आता है और वे बताते हैं कि दैट हाउ वी आर फाइटिंग फॉर शेयर क्रॉपर्स राइट्स एंड दे ऑल्सो टेल्स महात्मा गांधी अबाउट द फी दे आर चार्जिंग फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। सो महात्मा गांधी देखते हैं कि इतने हाई फीस आप उनसे चार्ज करते हैं, तो वो उस पर उन्हें गुस्सा भी करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। ही स्कोल्ड्स लॉयर्स फॉर चार्जिंग लॉफ्टी फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स हु आर फियर स्टिकन हु, एंड उनमें से कुछ तो आते ही नहीं हैं, अत्याचार को सहन कर रहे हैं, और जो आते भी हैं तो उनसे आप इतना हायर रेट ले रहे हैं। तो गांधी जी स्कोल्ड्स लॉयर्स। इस बीच गांधी को पता लगता है कि हाउ जो है शेयर क्रॉपर एग्रीमेंट के तहत जो है पर उन्हें नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। दी टेनेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर 320 of total land and they had to surrender the entire harvest as rent to the landlords। तो गांधी जी को ये सब पता लगता है तो जो हैं वे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैं वे सेक्रेटरी के पास जाते हैं जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के हैं। तो ही रिफ्यूज्ड टू टॉक टू गांधी बाय सेइंग दैट यू आर एन आउटसाइडर एंड आई वॉन्ट टॉक टू एन आउटसाइडर। गांधी जी रिप्लाइज दैट ही इज़ नॉट आउटसाइडर। इस पर जो हैं गांधी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो हैं टेरहुट के, वो उनसे भी जो हैं उनके पास भी जाते हैं, शेयर होल्डर का पक्ष रखते हैं। इस पर भी जो है वे उनकी वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है और उन्हें जो है वहाँ से जाने को कह दिया जाता है। वो जो हैं टेरहुट को लीव ना करने का डिसीजन लेते हैं और ही डिसाइड टू गो टू मोतिहारी। तो जब मोतिहारी में वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है एक घर को ही अपना ऑफिस बना लेते हैं। तो वहाँ पर उन्हें पता लगता है जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उनकी तरफ से दैट एक पीजेंट को जो है मिस हैंडल किया गया है। तो जब वो उसे मिलने जाता है तो जो सुप्रिटेंडेंट है वो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं गांधी जी को और कहते हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप वापस चलिए। तो गांधी जी जो उसके सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि आप जो हैं अनरेस्ट फैला रहे हैं लोगों में, इसलिए आप जो हैं यू क्विट चंपारण। तो गांधी जी जो हैं उसको रिफ्यूज़ कर देता है। तो उसके रिफ्यूज़ल पर गांधी जी के जो है समन जो है गांधी जी को इशू हो जाते हैं कि नेक्स्ट डे आपकी कोर्ट में हियरिंग है, तो आपने हमारे आदेश की अवहेलना की है। अब गांधी जी जो हैं टेंशन में हैं, रात भर वे सो नहीं पाते हैं और अपने दोस्तों को और सारे इन्फ्लुएंशियल आदमी को आश्रम में भी लिख देते हैं और वॉइसरॉय को भी जो सारे मामले की जानकारी दे देते हैं। अगले दिन जो हैं कोर्ट में सारे इलाके के लोग भी जो हैं ऑल द एरिया इज़ ब्लैक विद द हेड्स ऑफ पेजेंट्स, सभी जो हैं लोग आ गए हैं। उन्हें पता लगता है कि एक महात्मा हमारे राइट्स के लिए आए हुए हैं, फाइट कर रहे हैं। तो हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं एंड द गवर्नमेंट सीम्स टू बी बैफल्ड कंफ्यूज टू हैंडल द सिचुएशन। द प्रोसिक्यूटर जो है उनको कहता है कि मामले को स्थगन कर दिया जाए। तो जज जो हैं महात्मा गांधी को बोलते हैं कि आपको जो है 2 घंटे के लिए बेल दी जाएगी। तो महात्मा गांधी जो है बेल के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं बेल नहीं लूँगा और आप देखिए क्या करना है। तो इस पर जो है 2 घंटे बाद कोर्ट को मिलना होता है दोबारा। 2 घंटे बाद जब कोर्ट मिलती है तो गांधी जी को कहा जाता है कि हम आप पर अभी निर्णय नहीं लेंगे, कुछ दिनों के बाद निर्णय आएगा, तो तब तक आपको जो है फ्री किया जाता है। तो एक तरह से ये जीत महात्मा गांधी की लोगों के सामने होने लग जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे चंपारण सत्याग्रह इज़ बीइंग टेकिंग प्लेस। एक योजना बनाने के लिए महात्मा गांधी को समय मिल जाता है। वो राजेंद्र प्रसाद और अन्य व्यक्तियों को अपने पास बुलाता है, लॉयर्स को भी, कि अगर मुझे अरेस्ट करने का
जो गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश आता है तो क्या करेंगे आप। तो इस पर सभी लॉयर कहते हैं कि हम तो आपकी जो हैं वी आर हियर टू give you advice on the matter, if you are sent in the jail we will go back to home। इस पर वो कहता है कि तो फिर जो ये इनकन्वीनियंस जो शेयर क्रॉपर का हो रहा है उसका फिर आप क्या करेंगे, अगर मैं जेल चला जाऊंगा और आप घरों में चले जाओगे। तो इस पर राजेंद्र प्रसाद दोबारा से लॉयर्स के साथ बैठते हैं और वे डिस्कशन करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक बाहर का आदमी आकर हमारे बिहार में चंपारण में और शेयर क्रॉपर के हितों के लिए लड़ रहा है और जेल जाने के लिए भी तैयार है। और हमसे जब पूछा जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो ये डिजर्शन जो है उन्हें उचित नहीं लगता है। राजेंद्र प्रसाद अपने लीडरशिप में सबके साथ ले जाकर गांधी जी को बोलता है कि नहीं, हम घर नहीं जाने वाले हैं बल्कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो सारा एक प्लान बना लिया जाता है। गांधी जी सबकी ड्यूटियाँ लगा देते हैं कि आपने जो है यहाँ पर अरेस्ट देना है, आपने यहाँ पर अरेस्ट देना। फिर जब कुछ दिनों बाद डिसीजन आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो यही डिसीजन आता है कि दैट द केस अगेंस्ट महात्मा गांधी इज़ ड्रॉप्ड। तो सारे इलाके में जो है खुशी की लहर फैल जाती है। सिविल डिसोबीडियंस का पहला एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी का कामयाब हो रहा है, लोगों में खुशी है। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं एडवर्ड गेट के साथ मीटिंग होती है कि वहाँ पर मांग रखी जाती है कि इंक्वायरी की जाए। तो इंक्वायरी जांच कमेटी में जो है इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो जांच करते हैं और इतना बड़ा एक पाइलअप जो है लोग भी जो हैं अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है जमा करवाते हैं कि वाकई हमसे जो है नाजायज़ हुआ है और एक डिस्टॉर्शन जो है मनी हमसे लिया गया है, अनजस्टिफाइएबल है जो कि। और फिर जो है ये डिसीज़न होता है कि कंपनसेशन जो है वापस किया जाएगा। और दरअसल ये होता है कि जर्मनी में जो है इस दौरान सिंथेटिक नील जो है बना लिया है और ये बात जो है लैंडलॉर्ड्स को पता लग जाती है कि अब इंडियन जो इंडिगो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो बजाय इलिटरेट पेजेंट्स को बताने के वो इसको भी इस तरह से लेते हैं कि हम आपका 15% पर इंडिगो का जो क्रॉप है वो माफ़ कर देंगे अगर हम आप हमें बदले में कंपनसेशन दे दें। तो कुछ लोग तो इसको मान जाते हैं और वे कंपनसेशन जमा करवा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी ये बात पता लग जाती है कि ये कंपनसेशन जो है गलत लिया गया है, क्योंकि वास्तव में असली बात ये थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है बनाना शुरू कर दिया है और भारतीय नील की मांग जो है अब नहीं रही है। तो अंग्रेज़ों ने जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने जो है धोखे से जो है ये मनी हमसे ली है। तो जो वो पुअर शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स हैं वे अपना कंपनसेशन जो है वापस मांग रहे हैं। तो गांधी जी इसके खिलाफ ही जो है चंपारण सत्याग्रह यही जो है उनके हितों के लिए लड़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग इट इज़ आस्क्ड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर कि हाउ मच कंपनसेशन वी मस्ट पे। तो उसे लगता है कि गांधी जी विल अडम हैं, वे जिद करेंगे कि 100% दिया जाए और जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वे जो है 50% जो कंपनसेशन को वापस करने की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी जो है 25% का ऑफर लैंडलॉर्ड्स की तरफ से किया जाता है, उस पर भी वो एग्री कर जाते हैं। उनकी बात ये होती है कि दिस कंपनसेशन ऑफ 25% और 50% इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन द फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि अब उन्हें ये लगने लगे कि हमारा भी जो है कोई डिफेंडर है। दे हैव स्टार्टेड नाउ फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, तो दे आर नॉट नाउ एनी मोर फियर स्टिकन। तो ये बात जो है गांधी जी को ज़्यादा ज़रूरी लगती है। दैट इज़ वाई जो है वो 25% पर भी जो एग्री हो जाते हैं और डेडलॉक को तोड़ देते हैं। डेडलॉक तोड़ना और 25 की जगह जो है जो प्रेस्टीज भी जो है उन्होंने एक तरह से लैंडलॉर्ड की डाउन कर दी है, इसको वो एक बड़ी जीत मानते हैं कि प्रेस्टीज भी जो है वो भी चली गई है। ये किसानों के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी थी, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर गांधी जी चंपारण में रहते हुए ही अन्य जो अपने समाज कार्य जो है शुरू करते हैं अपने आश्रम की तरह ही। वहाँ पर जो महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जो यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी देवदास, गांधी जी's वाइफ मिसिज कस्तूरबा गांधी जो है ऑल्सो अराइव्स देयर, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर जो हैं वे सब मिलकर चंपारण में जो हैं 6 स्कूल्स इन डिफरेंट विलेजेस आर ओपन्ड, और जहाँ पर शिक्षा कार्य शुरू किया जाता है। गांधी जी देखते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की दशा, उनके कपड़ों की दशा बहुत ख़राब है। इस पर भी कस्तूरबा को बोलते हैं। तो एक महिला के घर जाते हैं तो वो बताती है कि कैसे उसके पास सिर्फ
एक ही साड़ी है। इसके अलावा हेल्थ जो है वो भी जो है बड़ा फिल्दी जो है कंडीशन है वहाँ पर, और हेल्थ में भी जो है एक क्विनीन है और एक कैस्टर ऑयल है और एक जो है सल्फ़र ऑइंटमेंट है, वे ही जो है हेल्थ में, और वो वहाँ पर जो है चंपारण में डॉक्टरों की व्यवस्था करता है 6 माह के लिए। इस दौरान जो है गांधी जी अपने आश्रम के साथ साथ जो है 7 मंथ तक चंपारण में रहना और आना जाना रखते हैं, और वहाँ पर जो है कई तरह के कार्य शुरू किए जाते। इस तरह से चंपारण जो एपिसोड है, गांधी जी खुद भी मानते हैं कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, ये जो है मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। और दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह दैट वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय गांधी ऑन हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग लाइक नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस विच वर टेस्टिंग वाज वेरी मच सक्सेसफुल। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू जो है वहाँ पर एक इंग्लिश हैं जो गांधी से बहुत प्रभावित हैं, वे भी जो है राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों को अपनी हेल्प बीइंग एन इंग्लिशमैन जो है करने को तैयार होने को बोलते हैं। तो इस पर वे हाँ करते हैं, लेकिन जब गांधी जी के पास वे जाते हैं पूछने कि ये सर हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है सेल्फ रिलायंस बनना है, सिर्फ अंग्रेज होने के कारण किसी अंग्रेज़ की हेल्प ले लेना आप अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वो सब इसको मान जाते हैं और उन्हें जो है मना कर दिया जाता है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो गांधी कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस का जो हमें इस फाइट में रखना है। तो आप इस प्रकार से देखा आपने कि चाहे वो एक सेल्फ रिलायंस हो, इंडियन मूवमेंट हो, किसी भी तरह का, और ये जो शेयर क्रॉपर की समस्या थी, ये तीनों जो हैं आपस में मिले हुए थे जो कि गांधी हमें सिखाना चाहते थे। सो दिस वाज द लेसन समरी इन विच it is shown to us the typical style of functioning of Mahatma Gandhi and with the help of non-violence and civil disobedience how he succeeded in solving the problem of Champaran peasants and sharecropper. Let's go for exercise point of view. You can see these are question paper of last year of 10+2 in my hand. You can see set A, B, C and D, and let's see at once which questions were asked last year from this lesson, which are I am giving you example of last year question paper of 10+2 here. You can see in set A, in set B and in set C and in set D, you can see. So these are 4-5 questions that those were asked last year, and I will discuss you with other important questions with these also. First of all, it is asked why did राजकुमार शुक्ला meet Gandhi? तो वो क्यों मिलने आते हैं? राजकुमार शुक्ला is a poor peasant. As someone has told him कि you speak to Gandhi on the issue of sharecroppers' unrest and the treatment being given to them by the landlords, and which is very unfair. So he decides to go to Gandhi and speak to Gandhi and make him aware of the situation, and also to help poor sharecroppers by coming to Champaran. So that's why he met Gandhi ji. As you saw in the lesson that Rajkumar Shukla is being described as a resolute word has been used for him. So why is it so? So he was resolute actually because he had come Lucknow from Champaran all the way to tell Gandhi about the plight condition of sharecroppers there, and when Gandhiji says that he has no time visit with him to Champaran, so he decides to go to everywhere wherever Gandhiji visits during those days. Even in Ahmedabad ashram also 4 weeks he never left Gandhiji, वो उनको बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है कई हफ्ते तक। तो इस तरह से वो दिखाता है कि वो रिजोल्यूट है, दृढ़ निश्चयी है, वो दिखाता है। तो आप ये लिखिए इसके। शुक्ला टेक्स गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, देयर राजेंद्र प्रसाद इज़ आउट ऑफ स्टेशन एंड हिज सर्वेंट जो हैं उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो उन्हें कैसे पता लगता है कि दैट गांधी जी इज़ अनदर पेजेंट विद राजकुमार शुक्ला? बिकॉज दे वर ऑलरेडी नोन टू राजकुमार शुक्ला, और जो कि उनके पास बार बार जो है शेयर क्रॉपर की प्रॉब्लम्स लेकर जो है आता रहता है। तो वे सोचते हैं कि दिस टाइम ऑल्सो ही इज़ अकम्पनीड बाई अनदर पेजेंट फॉर सम हेल्प।
So Gandhi was considered to be clad like other peasants who frequently visited them for help with जो हैं को list the places that Gandhi visited between the first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण। तो चंपारण में आने से पहले शुक्ला से पहली मीटिंग से लेकर चंपारण तक गांधी जी कहाँ कहाँ जो है विजिट करते हैं। तो जो है लखनऊ में उनकी पहली मुलाकात होती है और उसके बाद वो कानपुर जाते हैं और उसके बाद अहमदाबाद या लेटर ऑन कलकत्ता एंड पटना एंड मुजफ्फरपुर ऑल्सो फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द इश्यू बिफोर अराइविंग एट चंपारण एज यू सी। मोर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड कि जब मुजफ्फरपुर में लॉयर्स जो हैं गांधी जी से मिलने आते हैं तो वाई डिड गांधी जी चाइड लॉयर्स, वहाँ पर वो क्यों डांटते हैं। एज यू सा इन द स्टोरी दैट lawyers were charging hefty fees from sharecroppers and they were already fear-stricken. Gandhiji also thought that it was of no good. Such cases to the court did little good to the crushed and fear-stricken peasants, and the relief for them according to Gandhi was to be free from fear. असली तो उन्हें आराम तब मिलेगा जब इस डर से छुटकारा मिलेगा और आप लोग इतनी हाई फीसिस इनसे ले रहे हैं। दैट्स वाई गांधी चाइडेड लॉयर। हाउ वाज गांधी एबल टू कन्विंस लॉयर्स, कि कैसे जो है गांधी जी ने जो है वकीलों को जो है उनको कन्विंस किया। तो एज यू सा दैट गांधी जी आस्क्ड द लॉयर व्हाट दे विल डू इफ़ ही इज सेंटेंस्ड टू जेल। तो दे रिप्लाइड दैट दे विल गो बैक होम। और इस पर जो है पलटकर जब गांधी पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द इनकन्वीनियंस बीइंग डन टू दीज शेयर क्रॉपर्स बाय द लैंडलॉर्ड्स, इस पर वे फिर से एक बार से मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि जब ये आदमी बाहर से आकर हमारी इतनी हेल्प कर रहा है और जेल जाने पर पूछ रहा है कि आप क्या करेंगे और हम घर जाने को बोल रहे हैं, तो वो कहता है दे अगेन कंसल्टेट करते हैं और राजेंद्र प्रसाद जाकर बोलते हैं कि नो वी ऑल्सो जो हैं हम भी आपके साथ जो हैं वी विल ऑल्सो गो टू प्रिजन विद यू। तो इस तरह से जो है गांधी जी एक तरह से फ़ाइट वो वहीं पर जीत चुके होते हैं, एक घोषणा कर देते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जब कंपनसेशन की बात हो रही थी ऑफिसर इंक्वायरी के साथ, तो वाई डिड गांधी जी अग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो इसके आंसर में आप बता सकते हैं अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट फॉर गांधी बट हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी एंड विद दैट मनी द प्रेस्टीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स वर ऑल्सो पार्टेड फ्रॉम दैम। इट वाज मोर इम्पोर्टेंट, so he agreed to the settlement of 25% of compensation. How did the episode change the plight of the peasants? Now peasants were need not to spend money on court cases and they were also free from fear. Also British planters जो है gave up their control from their estates and these now were reverted to the peasants. So the indigo sharecropping disappeared from now. So that's why they got benefited from this agreement. What was the attitude of average Indian in smaller localities toward the advocates of home rule? तो उन दिनों में होम रूल के लिए फ़ाइट कर रहे लोगों को अपने यहाँ पर स्टे करवाना लोग जो थे बहुत डरते थे। जैसा कि जे.बी. कृपलानी ने महात्मा गांधी को अपने यहाँ ठहराया स्कूल टीचर होते हुए भी। दे वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, जो अदर थे जो गवर्नमेंट को अपोज करते थे उनको यहाँ ठहराना जो है उससे डरते थे। Why do you think Gandhi considered the Champaran episode the turning point in his life? This episode began as an attempt to ease the sufferings of thousands of peasants and he got spontaneous support of thousands of जो हैं poor peasants and people there. Gandhi admits that what he had done was an ordinary action. He declared that the British could not order him about in his own country. उसका कहना था कि गोरे अंग्रेज बाहर के लोग होकर मुझे जो हैं कोई आदेश जारी नहीं कर सकते।
hence he considered चंपारण to be a turning point in his life. क्वेश्चन आता है कि जो पेजेंट्स हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या पे करते थे। तो जैसा आपने देखा कि वे जो है 15% जो है वो उसको पे किया करते जो है। जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो जो है डेवलप कर लिया था, सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेटलमेंट नाउ। द कंपनसेशन जो है उसके बदले में वो ले रहे थे कि आपको लैंड रिलीज़ किया जा रहा है, नाउ यू नीड नॉट टू ग्रो इंडिगो एनी मोर ऑन योर 15% ऑफ लैंड एंड द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। ये सोचकर ही जो है उन्होंने ये इम्पैक्ट जो है सिंथेटिक इंडिगो का जर्मनी में जो इजाद हुआ उसका पड़ा। शेयर क्रॉपिंग जो थी वो डिसअपीयर हो गई थी। हम एक्सरसाइज में भी देखें तो लिस्ट द वर्ड यूज्ड इन, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत से टेक्स्ट हैं दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रोसीजर्स। ये आप देख सकते हैं, नोटिस, समन्स, प्रोसिक्यूटर, जेल, ट्रायल, प्लेस्ड, गिल्टी, pled, order, penalty, sentence, judgment, prison and case, inquiry, evidence and commission। और कुछ अदर वर्ड भी हम देखें तो वे हैं कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, डिक्री, डिफेंडेंट, विटनेस, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, सेशन, ज्यूरी, वर्डिक्ट, डिसीजन, proceedings, postpone, case dropped, unanimously and deposition। These are the words you will see in your real life situations कि कभी भी आपके जीवन में आ सकते हैं। These are legal procedure terminology words जो हैं ये, and before these come in your life you should know the proper uses of these words। You can go to any dictionary for their meaning also, or with the lesson that we have studied आपको इन शब्दों की एक सेंस का पता लग ही गया होगा। तो रियल लाइफ सिचुएशन में आप इन्हें यूज़ कीजिए। So this was the lesson, this indigo, and if you have still some query you are welcome always, you feel free to you enjoy indigo। I will come next week with the new lesson. Till then, bye bye।